Hello students, this is Arzu Chaudhary and today we are here to discuss the very first chapter of your science book, which is crop production and management. So before starting the chapter, we have to go through about what are crops and what are their production management. As you know that food is the basic requirement of life and we need food to survive and to get energy. As India's population is growing rapidly and of course world's population is growing rapidly, so we require more food. And as you know that food and agricultural practices are related to each other because we are growing food with the help of agriculture. अब आप ये सोच रहे होंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है. एग्रीकल्चर से आप सभी फैमिलियर है. एग्रीकल्चर मीन्स खेती. And you know very well that world's population is mostly connected to the agriculture. So let us discuss the crop production and management. Crop production is enhancing the food production and also their managing properties. Like we have to store food and we have to improve the technologies related to food practices. Now what agriculture is? Agriculture क्या होता है? Agriculture is the growing of plants and also rearing of animals. Means जब हम agriculture की बात करते हैं तो उसमें plants को भी take care होना होता है और animals की भी, क्योंकि food हमें plant से भी मिल रहा है और animals से भी मिल रहा है. As we are getting green vegetables and other things from the plants and we are getting eggs, milk and other things from the animals. Now we will discuss about crops. Crops are the growing of a same plant on a large scale on a large area. Means the area on which we are growing the crops is known as field. Crops, if we say about crop of a particular kind, if we are saying about that crops of a rice, means हम एक ही ज़मीन पर, उस पूरे ज़मीन के टुकड़े पर हम सिर्फ चावल की खेती कर रहे हैं. So we called it as crops of rice. Now let us discuss about the classification of the crops. Crops are classified into three groups. Number one is on the basis of their products, on the basis of the season they are grown, and number third is on the basis of the purpose. Crops को three groups में define किया गया है, three groups में divide किया गया है. Number one is on the basis of the products, means उनसे हमें क्या products मिल रहे हैं. Number second is on the basis of the season they are grown, means किस season में हम कौन कौन सी crops को लगाते हैं और उनको कब फिर हम harvest करते हैं, उनको तब काट लेते हैं. And number third is on the basis of the purpose, means हमें किस crop से क्या चीज़ें मिल रही है और वो हमें किस तरह से benefit कर रही है, ये आपका basis of the purpose में आ जाएगा. So number one is on the basis of the products they are yielding. इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी crops हैं जिनसे हमें क्या क्या product मिल रहे हैं. Number one is pulses. Pulses में आपका आ जाएगा gram and peas. Okay. And next is cereals. Cereals में आपका आ जाएगा wheat, barley and maize. Number third is oil seeds. Oil seeds में आपका mustard and sunflower. मस्टर्ड ऑयल तो आपने सभी ने सुना है, मीन्स सरसों का तेल. ओके. नेक्स्ट वन इज रूट क्रॉप्स. रूट क्रॉप्स में आपका आ जाएगा स्वीट पोटैटो, शकरकंदी. ओके. एंड नेक्स्ट वन आर ट्यूबर क्रॉप्स. ट्यूबर क्रॉप्स में आपके पोटैटोज आ जाएंगे. नेक्स्ट काम इज शुगर क्रॉप्स. शुगर क्रॉप्स में आपका आ जाएगा शुगर केन. ओके. एंड नेक्स्ट वन आर प्लांटेशन क्रॉप्स. प्लांटेशन क्रॉप्स में आपका टी एंड कॉफी हम लोग एक्वायर कर लेंगे. एंड नेक्स्ट वन इज फाइबर क्रॉप्स. फाइबर क्रॉप्स में आपका जूट आ जाएगा एंड कॉटन. ओके. Then the classification comes on the basis of the season we are growing the crops. Number one is kharif crops and number second is rabi crops. So what are kharif crops? Kharif crops are the crops which are grown in the month of monsoon season as they require more water. आपकी जितनी भी खरीफ क्रॉप्स होंगी वो हमेशा मॉनसून सीजन में लगाई जाती हैं क्योंकि उन्हें बहुत पानी की ज़रूरत होती है और मॉनसून सीजन में इनफ रेनफॉल होता है. सो
These are suitable for the monsoon season only. So they are cultivated in the month of monsoon season, that is June or July, and then they are harvested in the month of September and October. Okay, and if we go through the examples, then cotton, sugarcane are some of the examples of kharif crops. Okay, then we will discuss about next is rabi crops. Okay, rabi crops. Rabi crops are the crops which are grown during the winter season as they require less water. रबी क्रॉप्स आपकी जो भी होंगी उनको उतने पानी की ज़रूरत नहीं होती जितनी खरीफ क्रॉप्स को होती है, इसीलिए इनको विंटर सीजन में कल्टीवेट किया जाता है. ओके, दे आर कल्टीवेटेड इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर एंड देन दे आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मे. ओके, एंड द एग्जाम्पल्स आर व्हीट, maize, rice are some of the examples of rabi crops. Okay, now third comes the classification on the basis of the purpose. Okay, so classification on the basis of purpose is defined into three groups. Number one are food crops, number second are your subsistence crops, and number third are cash crops. Food crops are the crops that are grown for the food requirement, and like wheat and paddy are grown by farmers as the requirement of their food product. Wheat and paddy, wheat means गेहूँ and paddy means धान. ये सब किसान जो है वो अपने खाने के लिए उगाता है, तो इसीलिए इनको फूड क्रॉप्स में कंसीडर किया गया है. नंबर सेकेंड आर subsistence crops. Subsistence crops are the crops that are grown by the farmers only to fulfill their needs. मीन्स कि अगर कोई किसान गेहूं की खेती कर रहा है, अगर वो वीट उगा रहा है, तो वो अपनी उसे उतने ही एरिया में उगाएगा जितनी उसे ज़रूरत है, सिर्फ उसके पर्सनल यूज़ के लिए. वो उसका ना ही कोई प्रॉफिट लेगा, ना ही वो उसको सेल करेगा, और ना ही वो उसको फ्यूचर यूज़ के लिए इस तरह से रख रहा है. वो सिर्फ और सिर्फ उसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही कल्टिवेट कर रहा है. सो दीज आर नोन एज सबसिस्टेंस क्रॉप. नाउ थर्ड वन आर कैश क्रॉप्स. कैश क्रॉप्स आर द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फॉर द प्रॉफिट एंड सेल. मीन्स किसान अगर किसी भी क्रॉप को अपने प्रॉफिट के लिए, जिसे वो मार्केट में सेल करके अपना प्रॉफिट बना सकता है, या फिर इंडस्ट्रीज को वो उसे सेल कर सकता है, तो उससे उसको पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल प्रॉफिट मिल रहा है. सो दीज आर नोन एज कैश क्रॉप्स. Cash crops are tea and coffee. As you know, tea and coffee are very necessary and very required by worldwide. We have discussed about agriculture, we have discussed about crops, and we have discussed about food. Now we have to discuss that how we have to do agriculture practices. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मीन्स क्रॉप्स जो भी हम ग्रो कर रहे हैं, उन क्रॉप्स को हमें किस तरह ग्रो करना है. अभी सिर्फ हमने पढ़ा है दैट हाउ वी आर ग्रोइंग द क्रॉप्स, विच टाइप ऑफ क्रॉप्स दीज आर. नाउ व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स वी आर नीडेड फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. सो देयर आर सर्टेन टॉपिक्स, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स वी विल डिस्कस नाउ. दीज आर, number one is preparation of soil. As you know that for agriculture purpose soil is very necessary. मिट्टी की ज़रूरत होती है, बिकॉज मिट्टी में ही कोई भी प्लांट, कोई भी आपकी क्रॉप ग्रो करेगी, बिकॉज सॉइल प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स टू द क्रॉप्स. ओके, सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जब हम करते हैं, वी नीड टू ऑफ द प्रोसेसेस. नंबर वन इज प्लॉगिंग एंड नंबर सेकेंड इज leveling. Ploughing means we have to loosen the soil. Loosening of soil is known as plugging, and we do it with the help of plough. Plough may be made of iron and wooden. As ploughing has certain advantages, so it is very required to have proper ploughing for the preparation of soil, because ploughing ensures the penetration, good penetration of the soil, so that water retain capacity must be good. अगर आपकी सॉइल लूजन रहेगी, अगर आपकी सॉइल की टर्निंग होगी,
तो उससे जब भी उसमें वाटर प्रोवाइड करेगा कोई भी फार्मर, तो वो वाटर डीप जाएगा सॉइल के अंदर, सो दैट वाटर कैन बी पेनिट्रेट थ्रू द रूट्स एंड इज easily acquired by the whole plant. Next advantage we will discuss is that it provides better aeration. Okay, means अगर आपकी प्लगिंग अच्छे से हुई होगी तो उससे क्या होगा कि जो भी एयर सॉइल के अंदर जानी है वो प्रॉपरली जा पाएगी. ओके, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की डिमांड अगर किसी प्लांट को है, कार्बन डाइऑक्साइड की डिमांड प्लांट को है, तो वो इजीली उसको अवेलेबल हो सकेगी. ओके, नेक्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर. अब नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के रूट्स में कौन पाए जाते हैं और किस तरह से रहते हैं. ओके, सो जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म रूट्स में पाए जाते हैं उनको भी एक बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा अगर सॉइल की प्रॉपर्टीज अच्छी होंगी तो. ओके, so next one we have discussed is leveling. We have talked about leveling. Leveling is the, now when we plug the soil, some crumbs, some crashes are there which need to be properly crushed. Okay, crumbs means जब भी हम किसी मिट्टी की प्लगिंग करते हैं तो उसमें कुछ मिट्टी जो है ना उनके कुछ बिगर पार्ट्स रह जाते हैं, तो उन बिगर पार्ट्स को क्रैश करना ज़रूरी होता है सो दैट कि एक इक्वल अमाउंट में, एक इक्वल क्वांटिटी की, एक इक्वल टेक्सचर हो जाए सॉइल का. सो दैट्स व्हाई लेवलिंग इज वेरी नेसेसरी एंड इट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर. नेक्स्ट एग्रीकल्चर टेक्निक इज सिलेक्शन एंड सॉइंग ऑफ सीड्स. सीड्स आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोइंग प्लांट, क्योंकि एक सीड से ही एक प्लांट पूरा कंप्लीट ग्रो करता है. तो नंबर सेकेंड जो बिगेस्ट टेक्निक, जो इम्पॉर्टेंट टेक्निक हमें यूजफुल है, वो है आपकी सिलेक्शन एंड सॉइंग ऑफ द सीड्स. प्रॉपर सीड्स आर रिक्वायर्ड विच मस्ट बी डिजीज फ्री, विच आर हेल्दी, विच आर क्लीन. ओके, एंड विच आर required to have proper a good quality of a plant or a crop. Okay, next after the selection of seed, what we do is we sow the seeds. Seeds are sown with the help of two methods. Number one is your broadcasting method and number second is your seed drill method. Broadcasting is considered to be the simplest and easiest method of sowing of seed. In this what we do is, in broadcasting method में हम क्या करते हैं कि जो भी आपके सीड्स होते हैं हम उनको अपने हाथों की हेल्प से, मीन्स जो भी फार्मर होगा वो अपने हाथों की हेल्प से ही उसको पूरे फील्ड में स्कैटर करता है, पूरे फील्ड में फैलाता है और वहाँ से जहाँ जहाँ वो सीड गिरते हैं फिर वहीं से वो क्रॉप जो है आपकी ग्रो कर जाती है. अब क्वेश्चन ये आता है कि जब सीड सॉइंग के लिए हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग मेथड था तो फिर सीड ड्रिल की ज़रूरत क्यों पड़ी? Because seed drill method has some of the advantages over broadcasting method. Because broadcasting method is time consuming method. Okay, क्योंकि अगर फार्मर्स अपने हाथ से उन बीजों को अपने खेतों में डाल रहा है तो उससे उसको टाइम कंज्यूमिंग तो हो गई. सो अब जब टेक्नोलॉजीज में चेंज आएगा, बेटर टेक्निक्स आएंगी, तो उसके लिए क्या हुआ, सीड ड्रिल को लाया गया. सीड ड्रिल क्या होती है? एक फनल शेप्ड मशीन होती है. उस फनल शेप में हम अपनी सीड्स को डालते हैं और नेक्स्ट उसकी जो उसमें कुछ पाइप्स कनेक्टेड होते हैं, उन पाइप्स के थ्रू वो सीड जाते हैं और वो एक प्लो की तरह ही होती है मशीन, और वो जहाँ जहाँ जाएगी वहीं पर उन सीड्स को बिखेरती हुई चली जाती है. ओके, सो दिस इज द better method of sowing of seeds. Third technique we will discuss about is addition of manures and fertilizers, which is also the most important part in the agriculture practices. Okay, addition of manures and fertilizers. What are manures? Manures are composed from the dead and decaying matter of plants and animals. जब भी कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, एनिमल की डेथ हो जाती है, प्लांट की डेथ हो जाती है, तो वो क्या होता है, सॉइल मिट्टी में कवर हो जाता है. और जब मिट्टी में कवर होता है तो कुछ टाइम बाद जो है वो डीके होने लगता है, और डीके होने के बाद हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो उसे अपनी हेल्प से उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देती है, और वो मैन्योर
हमारी सॉइल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, एज इट चेंजेस द क्वालिटी, इट मेंटेन्स द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, और जब क्वालिटी सॉइल की अच्छी होगी तो क्रॉप्स की ग्रोथ भी बेटर ही होगी. ओके, एंड नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स आर द chemicals. Fertilizers are the chemicals which are used for the proper growth of the crops. Okay, कुछ chemicals होते हैं, मेनली जो एलिमेंट यूज किया जाता है आपके फर्टिलाइजर बनाने में, उसमें नाइट्रोजन का यूज बहुत होता है. ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो आपके केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो क्या करते हैं, आपकी सॉइल की क्वालिटी को बेटर करते हैं. बेटर तो नहीं कह सकते, मैन्योर से, आपका जो मैन्योर होता है एज वो ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसीलिए वो सॉइल की क्वालिटी को ज़्यादा अच्छा करता है. लेकिन फर्टिलाइजर्स इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि फर्टिलाइजर जो है वो आपकी क्रॉप की ग्रोथ को ज़्यादा जल्दी बढ़ाते हैं एज कंपेयर टू मैन्योर. लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो आपकी सॉइल की क्वालिटी को धीरे धीरे ख़राब करते जाते हैं क्योंकि एसिडिक होते हैं बहुत ज़्यादा. अब जब सॉइल में एसिड की अमाउंट ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी तो कुछ टाइम बाद सॉइल की क्वालिटी में चेंज आ जाता है. सो मैन्योर हम कह सकते हैं कि आपकी क्वालिटी, प्लांट की, आपकी क्रॉप की क्वालिटी को थोड़ी लेट बढ़ाता है, लेकिन वो एक हेल्दी क्रॉप आपको देगा, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा क्रॉप के लिए एज कंपेयर टू द फर्टिलाइजर्स.